جیسا کہ آپ کے سامنے ہے بیٹا کہ یہ ایک مضمون کی آپ کو سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اور بیٹے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وقت کی پابندی کرنا بیٹا ضرور سیکھیں. اگر بحیثیت انسان ہم نے زندگی گزارنی ہے ٹائملی کلاس میں انٹر ہوا کریں. دیکھیں کہ آپ کے اسی ورک بک میں ایک اور مضمون ہے جو کہ وقت کی پابندی کے حوالے سے ہے. مے بی کہ ہم نے اس کو فرسٹ ٹرم میں لکھا ہو، پڑھا ہو، یاد کیا ہو، اور وہاں پر ایک ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وقت کی پابندی بہت پسند ہے، کیونکہ ہمیں نظام کائنات وقت کی پابندی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری تمام عبادات اس چیز پر شاہد ہیں کہ وقت کی پابندی اللہ کو کس قدر پسند ہے. تو بحیثیت انسان وقت کی پابندی ہی نہ سیکھی تو کس چیز کے ہم انسان ہوئے بیٹے. یہ چیزیں پڑھے لکھے لوگوں میں تو کم از کم یہ شعور لازمی آنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. ودن 5 منٹ سب بچوں کو انٹر ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹے اچھا نہیں لگتا. پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا میرے وطن کے بارے میں. یہ سارے الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو ابھی لکھوانے ہیں جو انڈر لائن کیا جا رہا ہے. جو بچے آج انٹر ہوئے ہیں وہ چیک کر لیں کہ کیا انہوں نے یہ سارے کے سارے الفاظ انڈر لائن کر لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک الگ سے کالم بنا کر ان کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں. یہ سارے پیراگراف ہم پچھلے لیکچر میں چونکہ پڑھ چکے ہیں ہمارے. اس کے بعد میں صرف آپ کو وہ لفظ سنا دیتی ہوں جن کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. آزاد ریاست، اہم، تہذیب، معاشرتی اقدار. بر صغیر کا لفظ لکھ لیں. لکھنے کی پریکٹس آنی چاہیے، آپ کو ہونی چاہیے، مہارت حاصل کریں اس میں. بر صغیر کیسے لکھنا ہے. تڑپ، حصول، تحریک آزادی، عظیم رہنما، طویل مدت، جد و جہد، اسلامی ریاست کا قیام، عمل میں آیا. پورا ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے. نیچے ہے 19 کا لفظ ہے، اردو میں بھی سیکھیں، میتھ میں بھی سیکھیں. آگے ہے 80 کا لفظ. 80 اردو میں بھی آنا چاہیے، میتھ میں تو آپ کو آتا ہی ہے. دیہات، زرعی، زراعت اور کپاس، گندم، چاول. آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ لکھنا آتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ بھی اگر بچوں کو لگتا ہے کہ کچھ الفاظ ان کو نہیں لکھنے آتے تو وہ خاص الفاظ کی پریکٹس وہ کر سکتے ہیں خود سے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ جتنے میں نے لکھوائے ہیں اتنے ہی ہوں، اس سے زیادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. معدنی وسائل. اس کے علاوہ یہاں پر کوئلہ، چونے کا پتھر، تیل، قدرتی گیس لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو ذخائر کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر ہے کپڑے کی صنعت، سر فہرست کا لفظ ہے. ذرائع آمد و رفت ہے. بری، بحری، فضائیہ تینوں کر لیں. وجود منوایا، صلاحیت، سرشار، متلاشی، شیدائی، رواداری، ہمہ وقت. تو بیٹے یہ چونکہ لاسٹ پیراگراف ہمارے رہ گئے تھے تو ہم اس کی ریڈنگ سن لیتے ہیں. ہم نے ریڈنگ کی تھی کہ کوئٹہ کے انگور اور سیب، سرگودا اور بلوار کے کینو، مالٹے، ملتان اور سندھ کے آم، مظفر گڑھ اور جلال پور کی کھجوروں کے باغات، چنیوٹ کا فرنیچر، سیال کوٹ کے سرجری کے آلات، ملتان اور فیصل آباد کا صوتی کپڑا، سوات اور کشمیر کی اون کی دنیا بھر میں فیصل آباد کا صوتی کپڑا، سوات اور کشمیر کی اون دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں. یہاں پر کی کا لفظ کاٹ دے ایکسٹرا ہے. پاکستان میں ہر طرح کے ذرائع آمد و رفت موجود ہیں. یہاں سڑکوں کا جال بچھا ہے. آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ گاڑی اور بسیں ہیں، ریل گاڑی اور بسیں ہیں. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور کوئٹہ، فیصل آباد میں ملک کے اہم ہوائی اڈے موجود ہیں. پاکستان کی 2 اہم بندرگاہیں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر سمندروں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے اور جہاں پر جہاز کھڑے ہوتے ہیں، بحری جہاز جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں، اس جگہ کو بندرگاہ کہا جاتا ہے.
पाकिस्तान की दो अहम बंदरगाहें कराची और गवादर हैं, जहां बहरी जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया में तजारत की जाती है। पाकिस्तान की फौज बर्री बहरी फ़ज़ाइया पर मुश्तमिल है। जो ज़मीन के ज़रिए यानी सरहदों पर मुहाफ़िज़ है, वहाँ उसको आर्मी यानी बर्री फ़ौज कहा जाता है। जो हमारे समुद्रों पर से आने वाले दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं, बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल जो फ़ौज है उसको बहरी कहा जाता है। और जो फ़ज़ा से आने वाले हवाई जहाज़ों का मुकाबला करती है दुश्मन के, उस फ़ौज को फ़ज़ाइया कहा जाता है, एयरफोर्स वगैरह। मई 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके पूरी दुनिया से अपना वजूद मनवाया। पाकिस्तान की मसल्ला फ़ौज जो हथियारों से लेस हो, जिसके पास असलहा काफ़ी मिकदार में हो, उसको मसल्ला कहते हैं। मुसल्ला अफवाज दुश्मन के किसी भी जारहाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। जारहाना का लफ्ज़ अंडरलाइन कर ले। पाकिस्तानी फौज खिदमत खल्क के जज्बे से भी सरशार है। पाकिस्तान के लोग मेहनती, बहादुर और जुर्रतमंद हैं। ये इल्म और हुनर के मतलाशी और दीन इस्लाम के शदाई हैं। मेहमान नवाजी और रवादारी जैसी रवायात के अमीन हैं। ये अपने वतन की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने को हम वक्त तैयार हैं। अब ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये आम लोगों की बात है, इसमें वो खवास शामिल नहीं है जो सिर्फ पैसा खाने के चक्करों में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुल्क को किसी तरक्की की बजाय रिवर्स में धकेलने की कोशिश में है। पाकिस्तान के लोग मेहनती, बहादुर और जरूरतमंद है। जरूरतमंद का मतलब है किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर इनमें सही शऊर पैदा हो जाए तो कभी भी इस तरह के हुक्मरान हम पर मुसल्लत होने की जरूरत न करें। पाकिस्तान ये इल्म हुनर यानी कि ये लोग यानी पाकिस्तान के लोग इल्म हुनर के मतलाशी यानी जुस्तजू करने वाले हैं। इल्म हुनर की जुस्तजू करने वाले हैं, ना कि हराम पैसे के पीछे भागने वाले। और दीन इस्लाम के शदाई यानी अपने दीन से प्यार करने वाले हैं। और इस तरह के लोग अपने तन मन धन सब कुछ इसकी भी कभी परवाह नहीं करते और अल्लाह पे भरोसा करते हैं हर मामले में। पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी जैसी मेहमान नवाजी और रवादारी यानी कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं तो उनको उनके मजहब पर रहने की इजाज़त दे देते हैं, उनको ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। तो यहाँ पर तो ये बेटा हो रहा है कि हम लोग आपस में मुसलमान ही एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते हैं, मजाक भी बनाते हैं उनका और उनकी तजलील भी करते हैं। और हमें इस तरह की आदतों से अल्लाह ताला महफूज रखे और हमें अपनी सलाह करने की कोशिश करने की तौफीक दे। अमीन कहते हैं अमानतदार को। ये ऐसी रवायतें हैं, ऐसी रस्में हैं कि जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं समझा जाता। ठीक है, अमानत की हिफाजत बेटा ऐसे ही करते हैं ना, अपनी जान से भी बढ़कर अमानत की हिफाजत की जाती है। अपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि वो सादिक और अमीन थे, सुना हुआ ना आपने? उनका लक़ब था सादिक और अमीन। तो अमीन कहते हैं अमानत की हिफाजत करने वाले को, जो किसी अमानत की हिफाजत करता है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें जो हैं ये बताई थी, मेहमान नवाजी और रवादारी, कि किसी के ऊपर इतना तजस्सुस नहीं रखना और ना किसी को इस तरह गहरी तनकीद से देखना है। और ये अपने वतन की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने को हम अब तैयार हैं। ये पाकिस्तानी लोगों के एक पैराग्राफ है, उनकी खुसूसियात बयान की जा रही हैं। अल्लाह करे कि ये रवायत अभी भी जिंदा हो। पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू है। सरकारी जुबान उर्दू है। पंजाबी, सिंधी और बलोची इलाकाई ज़बानें हैं। यानी इलाकाई का मतलब है उसी इलाके तक महदूद, जो इसी इलाके में बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी है और सिंध में सिंधी मशहूर है और बलोच के रहने वाले बलोचिस्तान के रहने वाले बलोची ज़ुबान बोलते हैं। ये इलाकाई ज़बानें हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बानें हैं और चूँकि बेटे ये 5th क्लास का लेवल है तो लिहाजा इनका अभी जिक्र ज़रा तवील हो जाएगा।
जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो नेट पे सर्च करें कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी ज़बानें हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंध में बोलने वाली एक मेमरी ज़बान का हवाला देती हूँ कि वो भी एक बड़ी ज़ुबान है जो सिंध के लोग बड़े शौक से बोलते हैं हैदराबाद में। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इसके अलावा और भी कई दूसरे खेल खेले जाते हैं। अच्छा बेटे, ये कई कई ज़ुबानों के अलावा यहाँ पर पर्शियन बड़ी मशहूर है। पाकिस्तान में पर्शियन सीखने वाले लोग हैं पंजाबी के अलावा, और फ्रेंच सीखते हैं लोग, चाइनीज़ भी आजकल सीखी जा रही है। इंग्लिश का तो आपको अंदाज़ा ही है कि काफ़ी सारे लोग इस पर महारत हासिल करते हैं। आम लोग यानी कि आम स्टूडेंट भी आराम से इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, इसके अलावा और भी कई खेल खेले जाते हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं खेलों के बारे में मेरे से ज़्यादा आपको पता है, पाकिस्तान कई साल स्क्वॉश का आलमी चैंपियन रहा है। आलमी चैंपियन कहते हैं जीतने वाले को, यानी कि तमाम मुल्कों के जितनी भी टीमें हैं उन सब में जो जीतने वाला होता है उसको चैंपियन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। सी पैक मनसूबे के तहत पाकिस्तान तरक्की की नई शाहराह पर गामजन है। ये इस्लाम का किला है, हमें इस किले को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। बेटे, इस पैराग्राफ का मतलब है कि पाकिस्तान ऐसी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई थी। इसके अंदर इस्लाम अभी तक अल्लाह के शुक्र है कि महफूज और जिंदा है। पाकिस्तान के ऊपर जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, यहाँ के लोग इस्लाम के शदाई इस कदर ज़्यादा हैं कि हर मुश्किल का हंस कर मुकाबला कर लेते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। और यही दीन इस्लाम की असल रूह है कि हर मुसीबत में और आफत में अल्लाह ताला को पुकारा जाए और उसको अपने जरिया बनाया जाए और उसी से दुआ की जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो रोशन है, सी पैक मनसूबे का जो ये एक जुमला डाला हुआ है, तरक्की की नई राह पर गामजन है, तरक्की की जो नई शाहराह है। सी पैक ऐसा मनसूबा है कि अगर ये बनता है तो पाकिस्तान की कौम ना सिर्फ पूरी दुनिया से ऊपर आ जाएगी बल्कि पाकिस्तानी रुपया भी डॉलर को डिफीट कर सकता है। यानी कि डॉलर उसके जरिए नीचे आ सकता है, क्योंकि फिर सी पैक के जरिए तजारत जो है वो अब पूरी दुनिया के लोगों के लिए आसान हो जाएगा करनी। और फिर पाकिस्तान की जो ऐसी अल्लाह ताला किस्मत करे कि आप अपनी आंखों से देखें कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में सबसे आगे होता है। अल्लाह ताला हमें वो पाकिस्तान देखना नसीब करे। बेटे, आगे मैं आपको वो दिखा रही हूँ, इसका एक इमेज है। आप ये काम करने के बाद इस काम को भी कर लीजिए। ये देखिए कि एक तस्वीरी कहानी है, तख्लीकी लिखाई है, और ये चूंकि बेटे रिकॉर्डिंग में जा रही है तो लिहाजा आप रिकॉर्ड करने के बाद भी इसको देख सकते हैं। ये कहानी है, तस्वीर बनी हुई है एक बारासिंगा की जो कि चश्मे से पानी पी रहा है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि तस्वीर की मदद से कहानी मुकम्मल करें। जो बच्चे खुद से लिखना चाहते हैं दे कैन डू, उनको फ्री है विल है उनके पास कि वो ये काम खुद से करें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारासिंगा चश्मे से पानी पी रहा था। चश्मे के शफाफ पानी में उसे अपना अक्स नजर आया। उसे अपने बल खाते सिंह बहुत खूबसूरत लगे। इतने में उसकी नजर अपनी पतली दुबली टांगों पर पड़ी। इतने में उसकी नजर अपनी पतली दुबली टांगों पर पड़ी। अपनी पतली सूखी टांगें उसे बहुत बुरी लगी। अचानक उसे शेर की धाड़ सुनाई दी। बारासिंगा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और जल्द ही शेर की पहुंच से दूर निकल गया। वहां घने जंगल में कांटेदार झाड़ियां थी, उसके सींग उन झाड़ी में फंस गए। उसने अपने सींग छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। इतने में शेर उस तक पहुंच गया और उसे चीर फाड़ डाला। बारासिंगा बहुत पछताया कि जिन पतली सूखी टांगों की वो तारीफ को नापसंद किया था, उनकी वजह से वो उन टांगों ने भागने में उसकी मदद की, और जिन सींगों की वो तारीफ कर रहा था कि मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, उनकी वजह से वो अपनी जान गंवाने में जान गंवा बैठा। तो नतीजा इसका दो तरह से हो सकता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और दूसरा इसका नतीजा ये हो सकता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी चीज़ में नक्स नहीं डालना चाहिए। ठीक है बेटे। दूसरा इमेज आपके सामने है, ये भी एक तख्लीकी लिखाई है, भेड़िया और लेला।
एक दफ़ा का जिक्र है, ये 108 पर है, इसको देख लें आप कि वहाँ पर आपने लिखना है, आपकी वर्कबुक में ही है ये वाला पेज, आप इसको लिख लीजिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी नदी पर एक लेला, बेटे लेले के बारे में आप देख लें कि भेड़ के बच्चे को कहते हैं। भेड़ होती है ना, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, आप देखें कि कितनी मासूम होती है भेड़ें। आपने देखी होंगी, जब अक्सर हम ईद उल अज़हा पर जब जानवर लेने जाते हैं तो वहाँ पर भेड़ें भी होती हैं, तो भेड़ के बच्चे को लेला कहा जाता है, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी नदी पर एक लेला पानी पी रहा था, एक भेड़िए का वहां से गुजर हुआ, लेले को तन्हा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने घुराते हुए कहा, ए तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो? लेले ने भेड़िए की आवाज सुनी तो डर गया और मिनमिनाते हुए कहा, हजूर ये पानी आपकी तरफ से बहता हुआ मुझ तक आ रहा है, भला मैं उसे कैसे गदला कर सकता हूँ? भेड़िया ये जवाब सुनकर दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ, मगर वो उसे खाने का इरादा तो कर ही चुका था। उसने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा, तुमने मुझे पिछले साल गाली दी थी, अब उसका बदला चुकाओ। लेले ने आजिज़ी से कहा, हजूर पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। भेड़े ने कहा, तो फिर वो यकीनन तुम्हारा बाप था। ये कहते ही भेड़े ने छलांग लगाई और लेले को चीर फाड़ खाया। नतीजा इसका ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जोर हमेशा ताकतवर का ही चलता है। जो ताकतवर होता है वो मासूम और मजलूमा पर जुल्म ढाते हुए एक सेकंड की देर नहीं लगाता। तो ये थी आज की 2 कहानियां जो आपने करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके अल्फाज मायनी। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मजमून मेरा वतन के अल्फाज मायनी है, आप यहाँ से देख लीजिए। आज़ाद रियासत, अहम, तहजीब। आज़ाद रियासत का मतलब है आज़ाद मुल्क, अहम का मतलब है ज़रूरी, तहजीब का मतलब है रहन सहन, और इसमें इक़दार भी शामिल है, ठीक है। तहजीब, अखलाकियात भी शामिल है, माशरती इक़दार, अखलाकियात, ये चारों लफ्ज़ एक दूसरे के हम मायनी हैं, ठीक है। तहजीब, रहन सहन, अखलाकियात, माशरती इक़दार, चारों एक दूसरे के, चारों का एक ही मतलब बनता है। तड़प, हलचल, हुसूल, हासिल, तहरीक आज़ादी, आज़ादी की तहरीक यानी कोशिश करना, ठीक है। तवील मुद्दत, लंबा अरसा, ज़राअत, खेती बाड़ी या काश्तकारी। मादनी वसाइल, मादनी वसाइल में बेटा तमाम कानें शामिल हैं, चाहे वो सोने की कान है, हीरे की कान है, कोयले की कान है, नमक की कान है, पेट्रोल और गैस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो वसाइल में शामिल है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन के ज़ख़ीरे, ठीक है, इसका एक मतलब बनेगा ज़मीन के ज़ख़ीरे। और इसका एक और मतलब है धातें, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ब्रास, पीतल, लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें। और ईंधन, जिनको जलाया जाता है, जैसे कि जलाने के काम जो भी चीज़ें आती हैं उनको ईंधन बोलते हैं, जैसे कि गैस है, पेट्रोलियम है, तेल है, मिट्टी का तेल है, या कोयला है, ठीक है। लकड़ी भी हम जलाने के ही काम आती है। लकड़ी ज़मीन के अंदर तो नहीं, लेकिन ज़मीन से ही इसका रिलेशन है। आप जानते ही हैं कि दरख्त जो है वो लकड़ी का ज़रिया है। रवादारी, खुश खल्की, वह बाहर मैंने जो मजमून आपको सामने रखा था उसके अंदर लिखा हुआ था रियायत दे देना। तो रियायत दे देने का मतलब है कि शख्सी आज़ादी दे देनी, कि किसी के ऊपर खाम खा मुसलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स कहे कि मुझे सेब पसंद है तो ठीक है, वो उसको सेब खाने देते हैं, हम लोग खजूर खा लेते हैं, ठीक है। छोटी सी मिसाल है। तो रवादारी कहते हैं खुश खल्की। हमा वक्त, हर वक्त। गामजन होना, ये मुहावरा है बेटे, इसका मतलब है तेज तेज चलना। गामजन, रुके बगैर तेज तेज चलना।
شیدائی چاہنے والے، پیار کرنے والے۔ برے صغیر چھوٹا خطہ اور جدوجہد ہے، لگاتار کوشش، صلاحیت ہے۔ جی صلاحیت، قابلیت، حکمت، علم، ذہانت، 4 مطلب ہیں بیٹے صلاحیت کے۔ سرشار مسرور، بھرا ہوا، ٹھیک ہے، کسی کام کو کر کر آپ انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یعنی پاکستان سے اگر ہمیں محبت ہے تو جو محبت رکھتا ہے پاکستان سے وہ اس کی خدمت کر کے مسرور ہو جاتا ہے، تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہر پاکستانی کے اندر بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سرشار ہونا۔ سر فہرست، سب سے پہلے، نمایاں، جو سب کو دور سے نظر آ جائے۔ وجود منوایا، اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا یا منوایا۔ جارحانہ، پرزور، ایسا حملہ جس میں نقصان پہنچ جائے۔ صنعت، کارخانے، متلاشی، جستجو کرنے والے۔ شاہراہ، بڑی سڑک، گزرگاہ۔ چیمپئن، جیتنے والا، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا۔ ذرائع آمد و رفت، سفر کے ذریعے، ذرائع۔ اور قلعہ، قلعہ مضبوط حصار ہوتا ہے، اس کا مطلب گھیرا بھی ہے اور ایک محفوظ عمارت بھی ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے الفاظ معنی، امید ہے کہ آپ کو یہ ان الفاظ معنی کے ذریعے اپنا مضمون سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میری وش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پاکستان میرا وطن یاد کریں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے وطن سے محبت کا جذبہ آپ کے اندر راسخ ہو جائے، اور جب آپ علم حاصل کر کے کچھ کرنے کے قابل ہوں تو اس وطن کو اپنی صلاحیتوں سے مزید ترقی کی طرف لے کر جائیں اور اس کی ترقی کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔